બિલકુલ. હા. આપ બોલો માં દાદા. સરસ છો? એકદમ ફાઇન. તબિયત સારી? મને પૂછો છો? હા, આપને જ પૂછું છું. એક્સ્ટ્રા ફાઇન, એક્સ્ટ્રા ફાઇન. હા, નો પ્રોબ્લેમ. હા. નો પ્રોબ્લેમ. થયા આવી ગયા છે ને मेरा वीडियो नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। दूसरा फोन ले लो ने। आपको ही ऑन करना पड़ेगा। वही करती। ऐसा हो तो आप फिर से री एंट्री ले लो एक बार, एग्जिट होके शायद। हाँ, एग्जिट होके करती हूँ। हाँ, आप एग्जिट हो जाइए, री एंट्री लीजिए। लीव मीटिंग यहाँ से। नहीं तो एना मिस्टर नो वापरे, बीजो मोबाइल वापरे। हाँ हाँ, બોલો દાદા. સરસ છો ને? કઈ બોલો દાદા, અમે સાંભળીએ. અને મને વાત કરો છો? હા, તમને કહું છું. દાદો કેવા, કારણ કે દાદો કહેવાતો હોય એવો હું જ એકલો કહું, બોલો. બધા. બસ આપણે રંજનબેનને સાંભળીએ. મારો દીકરો તમને દાદા કે મોહન ભાકે એટલે મને પણ મોહન ભા કહેવાનું મન થાય છે. નહીં, રંજનબેનને સાંભળીએ. મેં તો ઘણી વખત સાંભળ્યા છે. એનો ઇતિહાસમાં એનો રસ એ બેનનો એટલો બધો સરસ છે. અચ્છા દાદા, કોઈ બીજો ટોપિક લઈને ક્યારે આવો છો એ કહો મને. મેં તો કહ્યું છે કેટલી વખત કહ્યું છે. મેં નારી શક્તિની વાત કરી છે એમને કે મેં એક વખતે ગેરસમજૂતી બી થઈ હતી. હું સમજ્યો કે ગુરુવારે મારું નક્કી છે, પણ એમને કંઈક બીજું ગોઠવેલું હતું અને કન્ફર્મ નહોતું થયું. તો કહ્યું ભલે, ઓકે. હા, તો નારી શક્તિ ચાલો, જ્યારે તમને ઠીક લાગે ત્યારે, whenever you feel, whenever you feel. Preferably a Thursday. હા, preferably a Thursday. પણ ડોક્ટર સાહેબ, એક નર બધા નારી પર ભારી છે, એનું શું? એ કઈ વાંધો નહીં. એક નર કયો નર ભારી છે? એક નારી તો એમની એમ જ થવાની છે. એમની એમ જ થવાની છે. એક નારી નહીં, બધી નારી બધાને આપણી ઉપર ભારી થવાની છે. અને એમનો હક છે, એમનો હક છે. બહુ વર્ષો સુધી આપણે રાજ કર્યું, બહુ વર્ષો સુધી આપણે દાદાગીરી કરી. એક પક્ષી, બધું એક પક્ષી. એટલે જો મને બોલવાનું મળશે તો આ કોટ ફ્રોમ મનુસ્મૃતિ અને કહીશ કે આપણો મનુ ભગવાન એને શું કર્યું છે એ તો જુઓ. આપણે કે મનુ ભગવાન, મનુ ઇઝ અ ગ્રેટ લો ગીવર. અરે લો ગીવરે શું કામ કર્યા જુઓ. શોક વાઇઝ હું તમને બતાવીશ કે જુઓ એને આ કહ્યું છે, આ કહ્યું, આ કહ્યું, અને એનું પરિણામ ભોગવીએ છીએ આપણે કે સ્ત્રીઓને વર્ષો સુધી, સદીઓ સુધી ગુલામની ગુલામ જ રાખી આપણે. પણ તમે એમ કહો છો મનુ ભગવાને તો આખા વર્લ્ડમાં આ વસ્તુ છે. એ તો આખા વર્લ્ડમાં આપણે તો મનુ ભગવાનની વાત કરીએ અને આપણે અહીંયા આટલા હજારો વર્ષ પહેલા થયું તો ઘણું બધું આપણું જ ગયું છે ને. ત્યાં આગળ આપણું કેટલું બધું ગયું અહીંથી. સિકંદર કેટલું બધું લઈ ગયો. આખા વર્લ્ડમાં આપણે ત્યાં તો સૌથી પહેલા વોટ દેવાનું ને બધું મળ્યું લેડીઝ ને. એ છેલ્લા 100 વર્ષની વાત છે. ત્યારે દિશા બદલાવા માંડી. નહીં તો દુનિયાભરમાં જે પરિસ્થિતિ છે તે એની એ જ હતી. આપણે ત્યાં અપવાદ નહોતો, પણ આપણે ત્યાં તો લો ગીવર કાયદો કરીને આપણે ત્યાં તો એ કર્યું છે. અને જેને આપણે ભગવાન ગણ્યો એને બધું કર્યું છે. શ્લોક વાઇઝ તમે જુઓ. તમારા હિસાબે બરોબર ન ગણાય? હેલો, મનુ વાત બરોબર ન ગણાય એમ કહો છો તમે? મનુ બિલકુલ નહીં. ઉઘાડા ઓપન ચોકમાં થઈને મનુસ્મૃતિ જેને કહીએ છીએ ને એની હોળી કરવી જોઈએ. પિતા રક્ષતી કહું, પિતા આજા બેન આવી ગયા. પ્રણામ બેન. હા, પ્રણામ. પિતા રક્ષતી કૌમારીએ, ભર્તુ રક્ષતી યૌવને, પુત્ર રક્ષંતી વાર્ધક્યે, ન સ્ત્રી સ્વાતંત્ર્ય મારહતી. સ્વતંત્ર આપી આપણે જે કઈ સ્ત્રીઓને, એ તો મનુના નિયમોની વિરુદ્ધ છે. એને કમાવાનો હક નહીં, એને આત્મા પર નિર્ભર થવાનો હક નહીં. ખેર કોક દાડો વખત આવશે ત્યારે કહીશું.
આપણે વાત કરશું. રાખશું ફરી વાત આજે તો માટે. આપણે રંજનબેન ને સાંભળવા છે. રંજનબેન આજે માટે તો કંઈક બોલો તમે. રંજનબેન માટે તમે જ ઇન્ટ્રોડક્શન આપી દો ને. હવે તો તમે જે કઈ ગોઠવ્યું હોય તે પ્રમાણે કરો ને. ચાલો જયારે કહેવાનું હશે ત્યારે બે શબ્દો બોલીશ. જરૂર. ઓકે. નહીં નહીં, એટલે રંજનાબેન માટે કંઈક બોલો એમ હું કહું છું. ઓલ રાઈટ બોલો. ક્યારે બોલું? હા, અત્યારે? તમે રંજનાબેન માટે એમ હું કહું છું. જુઓ, રંજનાબેન અમારી મહિલા કોલેજ છે, એમડી શાહ મહિલા કોલેજ, અને એમાં she has been a senior professor. She was head of the department of history. અને એક હિસ્ટ્રીના ટીચર તરીકે I have never come across a person who was so devoted not only to teaching of history but to studying of history until the last, and even now she continues to study history and research it. And whatever subject she undertook, more particularly I have liked her and liked discussing with her, talking with her and learning from her about the Maurya Vansh, Chandragupta Maurya, the times of Chanakya, Ashoka, all that, and Nalanda University. And her keenness is that she is not only studying, she is not only bookish and giving lectures, but she even visits. She likes her interest in so much that she even visits those historical places of Magadha and Nalanda. And therefore, I think it would have been very interesting for all those interested in history to listen to her on the subject of, let's say, Chandragupta as one, or even Chandragupta and the entire Maurya वंश जो जितना है उतना वो ये पूरा पढ़ने के उसके साथ सुनने लायक है. वेरी वेरी मच. बिंबिसार का क्या बात ये था वगैरह, ऑल दैट. And if she's going to talk about medical today, the old medical science of India, then I think the first cesarean operation was also done in Magadha. Bimbisar ki mother, she was the Chandragupta's wife. That was the first cesarean advice of, because what happened was that Chandragupta and his Rani, the queen, they were eating एक दूसरे के सामने प्लेट रख के. But Chanakya had advised giving slow poison to Chandragupta, because he had feared that someday Chandragupta might be poisoned by his enemies and by his rivals. So he should be used to poison. He should be trained. His body should be trained to absorb poison. हमारे गुजरात में भी एक मोहम्मद बेगड़ा की बात है. मोहम्मद बेगड़ा की भी वैसी थी, उसकी माँ उसको पॉइजन देती थी so that he can survive poisoning if and when it takes place. तो ये हुआ. And therefore Chandragupta and his wife, when they were eating once, by accident only, चंद्रगुप्त की वाइफ जो रानी थी उसकी प्लेट चंद्रगुप्त के पास आई, और चंद्रगुप्त की प्लेट जिसमें पॉइजन था वो उसकी वाइफ के पास गया. आमने सामने बैठे थे उधर, और मालूम पड़ गया पीछे दासी को मालूम पड़ गया, करे ये तो गलती हो गई, ये तो पॉइजन वाली थाली रानी साहब की हाथ गई. Chanakya was available immediately, and therefore it was about 7th or 8th month going, she was pregnant. 7th or 8th month going, so Rani का cesarean operation किया. Cesarean operation तब बिंबिसार का जन्म हुआ उसमें से. But unfortunately the Rani died. She died. Bimbisar was ultimately told when he grew up, his mind was poisoned by a friend of his, कि देखो Chanakya was responsible for your mother's death. उसने ये उसको ये cesarean ये चेक करके मार डाला था उसको ये करके. And therefore Bimbisar became enemy of Chanakya, and he tried to kill Chanakya once or twice. Chanakya survived, and ultimately he and Chandragupta went down south. I think एक संन्यास लेके दोनों चले गए. तो ये ऐसी जो स्टोरी રંજનાબેન है આવી ગયા ડોક્ટર સાહેબ? રંજનાબેન આવી ગયા? रंजनाबेन क्यारનો છે રંજનાબેન. સાંભળે છે? ના એનો વિડિયો સ્ટાર્ટ નહોતો Randana, થતો are you ને. listening to me? Yes. Randana, are you listening to me? Yes, You heard sir. the story that I narrated about Yes, sir. Chandragupta Very nice. and the cesarean operation? Yes, sir. Very Bindusar. good. चलो चलो देखो,
बिंबिसार का बिंबिसार was born by a cesarean operation. जी बिंदु इसलिए उसको बिंदुसार कहते थे। जी सर। बरोबर है। तो आप सर, अगर आपको छोड़कर मेरे हिस्ट्री में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। हाँ देखो ना, ऐसे लोग हैं। ये कहते हैं, इनका कहना ये है कि सब बूढ़े लोग गए तो बूढ़े हाँ लोग को सर। हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं। अरे बूढ़े, तुम खुद तो इतिहास हो। यू हाँ, जी जब हाँ बूढ़े सर। हुए तो तुम्हारी पास इतिहास ही तो रहता है। व्हाट एल्स कैन यू डू? जी समझना सर। चाहिए उनको। जी सर, आज हम शायरी पे बोल रहे हैं क्योंकि इनका रिक्वेस्ट था सबका, इसलिए। हाँ हाँ दे। जी तो मैं शुरू करती हूँ सर। हाँ जी आप करो। सबों आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैम एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपके पीछे की लाइट बहुत ही, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है। ओहो, बैक लाइट को आप बंद कर दीजिए। मेरे लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो गया है अभी मैम। परफेक्ट है, अभी चलेगा। अच्छा, हाँ जी थैंक यू। ओके। और थोड़े से आपका पूरा फेस, माथा, सर दिखे ना, ऐसे बैठ जाइए। हाँ बस 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 बस, फिर ठीक है, अभी एकदम ठीक। जी, आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मोहन भाई, अपने प्रिंसिपल डॉक्टर दीपा शर्मा, मोदी भाई, बिंदु बेन और सारे सदस्यों की आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका दिया। मैं मोहन भाई की बहुत अनुग्रहित हूँ जिन्होंने मुझ में विश्वास रखा। अगर ये प्रोग्राम सफल हुआ तो इसका श्रेय मेरी प्रिंसिपल डॉक्टर दीपा शर्मा को जाता है, जिन्होंने मुझे यह विषय चुनने में मदद किया। आज का मेरा शीर्षक है कवि और शायरों के अनदेखे पहलू। शायर या कवि जब शायरी करते हैं या कविता लिखते हैं तो उनके बहुत सारे संस्मरण उस कविता या शायरी से जुड़े होते हैं। बहुत सारे कवि या शायर हुए जैसे गालिब, मजाज लखनवी, फैज अहमद फैज, ज़ौक़, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद निराला इत्यादि। बट उनकी अनगिनत कहानियां हैं। बट इन्हीं में एक अपना अलग अस्तित्व रखने वाले एक महान आधुनिक कवि थे, अटल बिहारी वाजपेयी। ये ठीक कहा गया है कि पीपल with good sense of humor have a better sense of life। अगर ये कहावत किसी पर अक्षरशः बैठती है तो वो अपने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी थे। ऐसे प्रधानमंत्री जिसके न केवल पार्टी सदस्य परंतु विपक्षी दल भी अनुयायी थे। उनमें बहुत सारे विलक्षण गुण में एक था उनकी हाजिर जवाबी। उनको कोई भी कितनी भी कड़वी बात कह देता, वो कभी नाराज नहीं होते थे और चुप भी नहीं रहते थे। उनकी हाजिर जवाबी ऐसी थी कि सामने वाला पानी पानी हो जाता था। यह घटना 16 मार्च 1999 में की है, जब अटल जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान और भारत के रिश्ते सुधारने के लिए अमृतसर से लाहौर तक की बस सेवा शुरू की।
पहली यात्रा उन्होंने खुद उस बस से लाहौर तक की तय की और उनकी एक कविता इस विचार को बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त करती है। आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। क्योंकि जब पार्टीशन हुआ था तो बहुत खून खराबा हुआ था, बहुत लोगों की जान गई थी, बलात्कार हुआ था, तो इसलिए वो लिखते हैं भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा। तो आगे वो लिखते हैं अंतर तम का नेह निचोड़े, इसीलिए ये समय है कि आप अपने अंदर के प्रेम को निचोड़े और बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। तो हम वापस बोलते हैं इसको, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतर तम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। वहां गवर्नर हाउस में उन्होंने देखा उन्होंने ऐसा ओजस्वी भाषण दिया कि पाकिस्तान के लोग भाव विभोर हो गए। कुछ वहां के नेताओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर वाजपेयी जी यहाँ इलेक्शन लड़ेंगे तो यहाँ के नेता चुने जाएंगे। भाषण के बाद एक दिलचस्प वाकया हुआ। पाकिस्तान की एक महिला पत्रकार ने मजाक करते हुए यह कहा, वाजपेयी जी आपकी तरह अभी तक मैं भी कुमारी हूं, क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? पर मेरी एक शर्त है, मुझे मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। अगर कोई और नेता होता तो प्रश्न की तरफ ध्यान न देता, पर वाजपेयी जी के हाजिर जवाबी का क्या कहना। उन्होंने हंसकर बोला, मैं भी शादी करने को तैयार हूं, बशर्ते मुझे पूरा पाकिस्तान दहेज में क्या आप दे सकेंगी? महिला पत्रकार सन्न रह गई और अटल जी दूसरे सवाल की तरफ बढ़ गए। पत्रकार सब चुटकियां लेने के लिए हमेशा अटल जी से प्रश्न करते थे कि वो अविवाहित क्यों हैं, शादी क्यों नहीं की। अटल जी हमेशा मुस्कुरा कर कहते, मैं अभी आदर्श पत्नी की तलाश में हूं। किसी दूसरे समारोह में अगर उनसे ये पूछा जाता कि आदर्श पत्नी मिली कि नहीं, तो फिर वाजपेयी जी मुस्कुरा कर कहते, उन्हें भी एक आदर्श पति की तलाश थी। वाजपेयी जी बहुत निडर और सच्चे थे। राजनीति में इसे एक बहुत बड़ा अवगुण माना जाता है, पर वाजपेयी जी अपनी बात बेझिझक कहते थे। जब भी मीडिया उन्हें कंवारा कहता तो वो पलट कर जवाब देते थे, मैं अविवाहित हूं पर ब्रह्मचारी नहीं। अटल जी के अविवाहित रहने का एक मुख्य कारण था कि जब वो ग्वालियर कॉलेज में पढ़ रहे थे तो उन्होंने ग्वालियर के राजघराने की बहुत सुंदर लड़की राजकुमारी कौल से उनका प्यार हो गया और वो जमाना ऐसा था कि लड़के वर्षों वर्ष प्यार करते पर इजहार नहीं करते थे। पर अटल जी तो बचपन से निडर थे। उन्होंने अपने दिल की बात पूरे तरीके से
चिट्ठी में उड़ेल दिया और एक किताब में रखकर राजकुमारी तक पहुंचा दिया। लड़की से सीधे तरीके से मिलने से लड़की झिझकती और असहज हो जाती, इसलिए उन्होंने किताब का सहारा लिया। चिट्ठी राजकुमारी कौल को मिल गई, पर अटल जी को कोई खबर नहीं आई। दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीत गए, पर अटल जी को कोई खबर नहीं आई। ऐसा न था कि राजकुमारी उस होनहार छात्र को नहीं चाहती थी। अटल जी इतने अच्छे वक्ता थे कि पूरा कॉलेज उनको बड़े मनोयोग से सुनता था। लाइब्रेरी जाना उनका नित्य का कार्य था और वो हर एक किताब पढ़ते थे। राजकुमारी कौल ने भी पत्र लिखा और उसे लाइब्रेरी के एक पुस्तक में डाल दिया, सोचते हुए कि वो चिट्ठी उनको जरूर मिलेगी। पर वो पुस्तक कभी वाजपेयी जी के हाथ नहीं आई और वाजपेयी जी ने भी नियति को स्वीकार कर लिया कि उनकी हथेली में प्यार नाम की रेखा है ही नहीं, और उन्होंने अपनी कविता में लिखा, एक बरस बीत गया, एक बरस बीत गया, झुलसता जेठ मास, शरद चांदनी उदास, सिसकती भरते सावन का, अंतर्घट रीत गया। अंतर्घट मतलब अंदर की घड़ा, रीत मतलब खाली हो गया, मतलब वो प्यार भरा घड़ा खाली हो गया। एक बरस बीत गया, पथ निहारते नयन, गिनते दिन पल छिन, लौट कभी तो आएगा, मन का जो मीत गया, एक बरस बीत गया। अटल जी के जीवन में बहुत मित्र आए, परंतु बात वहीं आकर रुक गई। लहू और इश्क का रंग दोनों फीका नहीं हो सकता। अटल जी ने कहा, मैं उसका हो चुका हूं जो और अब किसी का नहीं हो सकता। अटल जी जीवन भर विवाह नहीं किए और हमेशा किताब में रखे उस पत्र का इंतजार करते रहे जो उन तक कभी पहुंचा ही नहीं। उन्होंने एक कविता में लिखा, रोते रोते रात बीत गई, रोते रोते रात बीत गई, झुकी न अलकी, झुकी न पलकी, दर्द पुराना मीत न जाना, सुधियों की बारात खो गई, रोते रोते रात बीत गई। उन्होंने अपने मन को बहुत अच्छे तरीका से इस कविता में उतारा। एक दूसरा वाक्य है उनके बारे में, जब वो भारतीय जनता पार्टी, एक्चुअली 1977 में एक बड़ी पार्टी, विरोधी पार्टी कांग्रेस की होकर उभरी, तो भारतीय जनता पार्टी जब एक डेमोक्रेटिक फोर्स और लोकतांत्रिक रूप में उभरने लगी तो विरोधियों में खलबली मच गई। विरोधियों ने ब्रिटिश सरकार की डिवाइड एंड रूल नीति को अपनाया। उन्होंने अफवाह उड़ाया कि पार्टी के दो शीर्ष नेताओं आडवाणी जी और अटल जी में मनमुटाव रहता है। इस बात में सच्चाई तो जरा भी नहीं थी, लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म था। पत्रकारों ने अटल जी से पूछा कि ऐसा सुनने में आया है कि बीजेपी में दो दल हैं, एक अटल का दल और दूसरा आडवाणी का, क्या ये सच है? और वो जानते थे कि अटल जी कभी झूठ नहीं बोलते थे, वो नीडर थे। तो अटल जी ने
तुरंत आंसर दिया कि न मैं किसी दलदल में हूं, न किसी दलदल को जानता हूं। मैं हमेशा दूसरों के दलदल में अपना कमल कैसे खिलाना है ये मुझे अच्छी तरह पता है। उन्होंने क्यों ये बात कही? क्योंकि आज भी कमल भारतीय जनता पार्टी का सिंबल है। तो उन्होंने कितना अच्छा एक आंसर दिया कि मैं दूसरे के दलदल में अपना कमल खिलाना जानता हूं। और उसी बीच उन्होंने एक कविता लिखी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आदमी कहाँ खड़ा है, पथ पर या रथ पर, तीर पर या प्राचीर पर। फर्क इससे पड़ता है कि आदमी जहां खड़ा है या जहां उसे खड़ा होना पड़ा है उसका धरातल क्या है। उन्होंने आगे लिखा, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। आदमी की पहचान उसके धन से नहीं, उसके मन से होती है। और कुबेर की संपदा पे, मन की गरीबी पे कुबेर की संपदा भी रोती है। उसी से एक और वाकया है कि अटल जी जब 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने, 1996 में वो सिर्फ 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने और उन्होंने राजनीतिक पार्टियों में कमजोरी, गंदगी, गलत कृतियों को बहुत करीब से देखा। उनकी मर्म वेदना इस कविता में बहुत अच्छे से बयान होती है। उन्होंने लिखा, क्या खोया क्या पाया जग में, मिलते और बिछड़ते मग में। क्योंकि उन्होंने पॉलिटिक्स में इतनी गंदगी देखी कि उन्होंने अपने दिल की बात यहाँ पे लिख डाली। मुझे किसी से नहीं शिकायत, यद्यपि छला गया मैं पल पल में। एक दृष्टि बीती पर डालें, यादों की पोटली टटोलें। उन्होंने सारे राजनीतिक दलों को कहा कि इनर इंस्पेक्शन करो, इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने आप में झांको, देखो कितनी कमियां हैं। तो उसी से रिलेटेड उन्होंने ये कविता लिखी। और इस 13 दिन के बाद वाजपेयी जी वापस 1998 में 13 महीने की सरकार बनाई और अगर वो चाहते तो पार्टियों को खरीद सकते थे, वो खरीद लेते। और जो आजकल काफी होता है, अगर मोहन भाई या आप लोग सब उस जमाने में होंगे और आपने देखा होगा कि एक बात चली थी सूटकेस सरकार। आप सूटकेस में पैसा भरकर दे दें और आप अपनी पार्टी बना लें। और वाजपेयी जी बड़े सिद्धांत के पक्के थे। उन्होंने कहा हम ऐसी पार्टी बनाना नहीं चाहते हैं और अगर सूटकेस देकर मुझे पार्टी बनाना पड़ा तो मैं उस पार्टी को हाथ से क्या चिमटा से भी छूना नहीं चाहूंगा। मीन्स वो इतने सच्चे और नीडर थे। और तभी उन्होंने एक कविता लिखी और वो कविता थी, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज, सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। वो इतने दुखी थे कि उन्होंने लिखा, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलस्म आज, सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे शाह शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूं,
गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। और तभी उन्होंने इस कविता की संरचना की। विपक्ष ने अटल जी के बारे में काफी अपमानजनक बातें कही, तभी उन्होंने बहुत अफवाह उड़ाए। अटल जी काफी दुखी थे और उन्होंने एक कविता में लिखा, कौरव कौन कौन पांडव, टेढ़ा सवाल है, दोनों ओर शकुनी का फैला कूट जाल है, धर्मराज ने छोड़ी नहीं है जुए की लत, हर पंचायत में पंचाली अपमानित है। आज बिना कृष्ण के महाभारत होना है, राजा कोई बने रंक को तो रोना है, रंक को तो रोना है, उन्होंने ये लिखा। पर विपक्ष ने हमेशा वाजपेयी जी पर एक तोहमत लगाया कि वाजपेयी जी बड़े नकारात्मक हैं, हमेशा नेगेटिविटी में रहते हैं, उनके हर एक आंसर में नेगेटिविटी है। अगर कोई दूसरा नेता होता या आज का के संदर्भ में आप देख लें तो उन लोग सब तुरंत उनको आंसर देते और उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते। पर वाजपेयी जी चुप रहे और उन्होंने 1999 में जब तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने, वो एक्चुअली विपक्ष में सबसे लंबे समय तक रहे विपक्षी नेता। और उन्होंने इस समय एक कविता लिखी और वो उनके लगाए गए तोहमत का मीन्स लगाए गए एलिगेशन का बहुत अच्छा आंसर था। और वो था, उन्होंने लिखा, टूटे हुए तारों से फूटे बसंत स्वर, पत्थर की छाती में उग आए अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात। कोयल भी रात में गाती है, दिन में नहीं। फिर भी उन्होंने लिखा, प्राची में, प्राची मतलब पूरब में, अरुणिमा मतलब सूरज, सूरज का मैं एक रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। फिर भी मैं नया गीत गाता हूँ, मेरे में हौसला है कि मैं देश में अच्छा काम करके दिखाऊंगा और सकारात्मक तरीके से काम करूंगा। उन्होंने लिखा, टूटे हुए तारों से फूटे बसंत स्वर, पत्थर की छाती में उग आया अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राचीन